یہ گھر ہے، کوئی میکا نہیں، یہاں ناز نہیں چلیں گے۔ جی ہم نے تمہیں بہو بنایا ہے، نوکرانی نہیں، کام ڈھنگ سے سیکھو۔ جی امی، میں کوشش کرتی ہوں۔ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے، پھر یہ سزا کیوں؟ جب سمرا نے آنکھ کھولی تو فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی، مگر اس کے دل میں کوئی سکون نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے آنسو سجدے میں گر رہے تھے، مگر آواز اس کے لبوں تک نہ آئی۔ سمرا کی عمر صرف 18 برس تھی، مگر اس کے کندھوں پر برسوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک ایسے گھر میں بیاہی گئی تھی جہاں دیواریں تو کھڑی تھیں، مگر انسانیت گر چکی تھی۔ اس کا شوہر وقاص ایک سخت مزاج، سرد دل انسان تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ غصے کی لکیر کھنچی رہتی۔ اس کے والدین نے قرض اور عزت کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ طے کیا تھا، اور سمرا خاموشی سے قربانی بن گئی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ گھر محبت کا نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ یہ گھر ہے، کوئی میکا نہیں، یہاں ناز نہیں چلیں گے، وقاص نے پہلی رات سرد لہجے میں کہا تھا۔ سمرا نے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے سے حالات نہیں بدلیں گے بلکہ بگڑ جائیں گے۔ دن گزرتے گئے، وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، ساس سسر کے کام کرتی، شوہر کا ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی، مگر کسی نے کبھی اسے شکریہ نہیں کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں مسلسل درد۔ ایک دن ساس نے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں بہو بنایا ہے، نوکرانی نہیں، کام ڈھنگ سے سیکھو۔ سمرا نے سر جھکا کر کہا، جی امی، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی کرے، یہ گھر اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ وقاص اکثر رات دیر سے آتا، بات بات پر غصہ کرتا اور خاموشی کو سزا سمجھتا۔ کبھی کبھی اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے جو سمرا کے دل کو زخمی کر دیتے۔ تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، وہ ایک رات چلایا۔ تمہیں لایا ہی کیوں گیا اس گھر میں؟ سمرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود سے کہا، صبر کرو، شاید ایک دن یہ دل بدل جائے، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک بچی پر پڑی جو اسکول یونیفارم میں خوشی سے ہنس رہی تھی۔ سمرا کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا، کاش میں بھی اپنی پڑھائی مکمل کر پاتی، کاش مجھے بھی خواب دیکھنے کا حق ملا ہوتا۔ اس رات اس نے پہلی بار وقاص سے ہمت کر کے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا چاہتی ہوں، صرف تعلیم۔ وقاص نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تعلیم؟ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا گھر چلانا؟ فضول خواب مت دیکھو۔ سمرا خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل چیخ اٹھا۔ کچھ دن بعد ساس بیمار ہو گئی۔ گھر کا سارا بوجھ سمرا پر آ گیا۔ وہ دن رات خدمت کرتی، دوائیں دیتی، پانی پلاتی، مگر پھر بھی اسے سننے کو ملتا، تم نے دوا دیر سے دی، تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ ایک رات تھکن سے چور سمرا کچن کے فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پھر یہ سزا کیوں؟ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے، بیٹی، اندھیرے گھر میں بھی چراغ جلایا جا سکتا ہے اگر نیت سچی ہو۔ سمرا نے آنسو پونچھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گی، چاہے اس میں اس کی ساری زندگی کیوں نہ لگ جائے۔ اگلے دن اس نے ساس کے لیے خاص ناشتہ بنایا، ان کے پاؤں دبائے اور محبت سے بات کی۔ ساس حیران ہوئی مگر کچھ نہ بولی۔ وقاص نے بھی یہ سب دیکھا مگر خاموش رہا۔ سمرا نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نفرت کے بدلے محبت دے سکوں، غصے کے بدلے صبر اور ظلم کے بدلے دعا۔ یہ تھا اس کا پہلا قدم، ایک طویل سفر کی شروعات۔ سمرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑے بغیر اس گھر کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ وہ اب صرف ایک بہو نہیں تھی، وہ ایک خدمت گزار، ایک سہارا اور ایک خاموش دعا بن چکی تھی۔ ساس کی بیماری بڑھتی گئی، ڈاکٹر روز آتے، دوائیں بدلتی رہتی، مگر اصل دیکھ بھال سمرا ہی کر رہی تھی۔
वो रात को जागती, सास को पानी पिलाती, दवाएं देती और जब वो तकलीफ में कराहती तो उनका सर अपने सीने से लगाकर दुआएं पढ़ती। एक रात सास ने कमजोर आवाज में कहा, तुम क्यों ये सब करती हो? हमने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया? समरा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मैं अल्लाह के लिए करती हूँ और इसलिए भी कि आप मेरे शौहर की माँ हैं। सास खामोश हो गई। उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी झलकी। दूसरी तरफ वकास का रवैया अब भी सख्त था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। वो समरा को देखता कि कैसे वो बगैर किसी शिकायत के सबका ख्याल रखती है, मगर फिर भी वो जबान से कुछ न कहता। एक दिन मोहल्ले में एक औरत की बेटी की शादी टूट गई। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। लड़की बच्चलन थी, इसीलिए रिश्ता टूटा। कोई कह रहा था उसके माँ बाप की तरबियत खराब थी। दूसरा बोला। समरा ने ये सब सुना तो उसका दिल कांप गया। वो जानती थी कि मुआशरा लड़की को ही कसूरवार ठहराता है, चाहे गलती किसी और की हो। उसी रात उसने वकास से कहा, अगर किसी लड़की के साथ जुल्म हो तो क्या उसे खामोश रहना चाहिए? वकास ने सर्द लहजे में जवाब दिया, खामोशी ही बेहतर होती है, शोर मचाने से इज्जत जाती है। समरा ने दिल में सोचा, क्या इज्जत वाकई खामोशी की कीमत पर मिलती है? कुछ दिन बाद वकास के काम में नुकसान हो गया। उसका कारोबार बुहरान में आ गया। वो गुस्से और मायूसी में घर आया, चीजें फेंकी और चिल्लाया। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। समरा खामोशी से उसके पास गई, पानी का ग्लास दिया और आहिस्ते से कहा, अल्लाह आजमाइश देता है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। वकास ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो चीखने के बजाय सुकून दे रही थी। अगले दिन वकास ने उससे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना। ये पहला जुमला था जिसमें उसने हुक्म के बजाय जिम्मेदारी का एहसास दिखाया। वकास के जाने के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां समरा पर आ गईं। वो सास, सिसर, घर सब कुछ संभाल रही थी। मोहल्ले में एक लड़की मरियम अक्सर उसके पास आकर रोती थी क्योंकि उसके वालिद उसे भी जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहे थे। उसने इससे कहा, बेटी तुम खामोश मत रहो, अपने हक के लिए बात करो। अगर आज तुम बोली नहीं तो कल कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। ये अल्फाज कहकर खुद समरा का दिल भी कांप गया क्योंकि वो खुद भी बरसों खामोश रही थी। एक दिन सास ने उसे पास बुलाकर कहा, समरा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। तुमने मुझे मेरी बेटी की तरह संभाला है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। ये पहला मौका था जब इस घर में किसी ने उसे इंसान समझा था। समरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि उम्मीद के थे। उसने दिल में सोचा, शायद रोशनी आहिस्ता आती है, मगर जब आती है तो अंधेरे को पीछे छोड़ जाती है। वक्त बदल रहा था मगर आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। सास की सेहत अब बेहतर हो रही थी। वो अब समरा को बेटी कहकर बुलाती थी और ये लफ्ज़ समरा के दिल में अजीब सी गर्मी भर देता था। मगर वकास अब भी अपने अंदर की दीवारों के पीछे कैद था। एक दिन वकास शहर से वापस आया। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। उसने बैग रखा और बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। समरा ने चुपचाप उसके लिए चाय बनाई, सामने रखी। वकास ने पहली बार खुद से सवाल किया, ये औरत क्यों कभी शिकायत नहीं करती? ये क्यों हर हाल में मुस्कुरा देती है? उसी रात वकास को बुखार हो गया। वो कांप रहा था और जिस्म में शदीद दर्द था। समरा ने फौरन उसका ख्याल रखा, ठंडी पट्टियां रखी, दवाएं दी और सारी रात जागकर उसके पास बैठी रही। रात के पिछले पहर वकास ने आंखें खोली और देखा कि समरा कुर्सी पर बैठी सो गई है। उसके हाथ में दुआ की तस्बीह है। उसके दिल में पहली बार कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। अगले दिन वकास ने आहिस्ता से कहा, तुम थक गई होगी, कुछ देर आराम कर लो। समरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये पहला मौका था जब उसने उसके आराम का ख्याल रखा था। इसी दौरान मोहल्ले में मरियम का मसला ने शिद्दत इख्तियार कर ली। उसके वालिद ने उसकी मंगनी एक ऐसे शख्स से तय कर दी थी जो उम्र में बहुत बड़ा था। मरियम रो रो कर समरा के पास आई, आपी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे डराता है। समरा ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरना फितरी है मगर खामोश रहना खुद पर जुल्म है। इजाजत हो तो मैं तुम्हारे वालिद से बात करूं?
मरियम की आंखों में उम्मीद जाग उठी। समरा ने हिम्मत करके वकास से भी इस बारे में बात की। अगर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही हो तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? वकास में कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह जुमला समरा के लिए किसी मौजज़े से कम न था। दोनों मरियम के घर गए। वकास ने पहली बार किसी लड़की के हक में आवाज उठाई। उसने मरियम के वालिद से कहा, जबरदस्ती शादी गुनाह है, इज्जत खुशी से बनती है, मजबूरी से नहीं। मरियम के वालिद खामोश हो गए। चंद दिन बाद उसने मंगनी तोड़ दी। मरियम ने आकर समरा के हाथ चूमे और रोते हुए कहा, आपी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। ये अल्फाज समरा के दिल में उतर गए। उसी रात वकास ने पहली बार कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे नहीं मालूम था कि सब्र इतनी बड़ी ताकत होता है। समरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बदला नहीं चाहा, बस दुआ की थी। वकास खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में पछतावा था। सास ने यह सब देखा और दिल ही दिल में कहा, यह लड़की वाकई रोशनी है, इस अंधेरे घर की रोशनी। वक्त ने वो मोड़ ले लिया था जिसकी समरा ने कभी हिम्मत करके उम्मीद भी नहीं की थी। वकास अब बदल चुका था। वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इंसान नहीं बना था, मगर उसके रवैये में नरमी आ चुकी थी। वो अब गुस्से के बजाय खामोशी से बात करता, हुक्म के बजाय मशवरा देता और सबसे बढ़कर समरा के वजूद को महसूस करने लगा था। एक दिन उसने समरा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा पढ़ाई शुरू करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समरा की आंखों में आंसू आ गए। वाकई? वकास ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैंने तुम्हें बरसों कैद में रखा, अब मैं चाहता हूं कि तुम आजाद सांस लो। ये अल्फाज समरा के लिए किसी इनाम से कम न थे। सास ने भी इस फैसले की हिमायत की। बेटी, तुमने हमें जिंदगी दी है, अब हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस देंगे। समरा ने करीबी कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो दिन में घर संभालती और शाम को तालीम हासिल करती। किताबें उसके हाथ में आकर ऐसे लगती जैसे बरसों बाद वो खुद को दोबारा पा रही हो। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक समाजी कारकुन खातून से हुई जो ज़बरदस्ती शादियों के खिलाफ काम कर रही थीं। समरा ने अपनी कहानी सुनाई तो वो खातून रो पड़ी। आप सिर्फ मजलूम नहीं हैं, आप ताकत की मिसाल हैं। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? समरा ने हिम्मत के साथ कहा, अगर मेरी आवाज़ किसी और लड़की को बचा सकती है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो एक उम्मीद बन चुकी थी। वकास ने एक दिन उससे कहा, मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ, तुमने मुझे भी बदल दिया। समरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किसी को नहीं बदला, बस दुआ की थी। सास ने आंसुओं के साथ कहा, यह घर अंधेरे से भरा था, मगर तुमने इसे जन्नत जैसा बना दिया। एक शाम समरा छत पर खड़ी सूरज को डूबते देख रही थी। हवा में सुकून था, दिल में शुक्र। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे सब्र को रायगाह जाने नहीं दिया। वकास उसके पास आया और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, न कि तोड़ना। समरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बस चाहती हूँ कि किसी और बेटी को वो दिन न देखने पड़े जो मैंने देखे। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये हर उस बेटी की थी जो अंधेरे में भी रोशनी बनना चाहती थी। और आखिर में समरा को उसके सब्र, दुआ और हिम्मत का फल मिल गया। इज्जत, मोहब्बत, आज़ादी और मकसद।